Give him my regards. Definitely, sir. Definitely. Abhishek, sir, should we start? Yes. Okay. A very good evening to one and all present over here. Today we are having a guidance lecture by our dear sir, who is a well-known person in the field of accounts, and definitely he needs no more introduction. But yes, it does not stop me to introduce him. It's our Mr. Satram Namdev Verhani sir. Sir has done MCom, B.Ed, MSA CIT, and he is a vice principal in Srimati CHM College, Ulhasnagar, which is also managed by our own HSNC board. Sir has 34 years of teaching experience and presently president of Rotary Club of Ulhasnagar Midtown. He has been an examiner and a moderator for HSC bookkeeping and accountancy subject since 3 decades. He has conducted career guidance and counseling sessions for the students in general and Sindhi linguistic minority of Ulhasnagar Township in particular. In addition to the post of vice principal, recently he has been assigned additional responsibilities of HSNC B schools, Ulhasnagar School as a coordinator for school managed by our own HSNC board. Sir, on behalf of MMK, we welcome you all and the stage is yours. Please carry on, sir. Sir, you're on mute, sir. Thank you, Abhishek, for your kind words. Welcome, sir. Thank you so much. Namaskar, good evening, Sat Sri Akal, Adab to one and all. This is your very own Satram Verhani from Ulhasnagar, Srimati Chandibai Himmatmal Mansukhani College, a vice principal and a teacher over there since last 34 years. Let me at the outset express my gratitude to HSNC board, which has always been student-centric. My acknowledgements are due to the principal of your college, my friend and brother, Dr. C.A. Kishore Peshori. I would also like to thank for inviting me for this lecture to the very own Vice Principal of Junior College, Wag Madam. I would also like to thank all the faculty members, the technical support, and of course, the lovely students for being there with us. So without much ado, I would start with the lecture. In fact, it is not exactly a lecture on bookkeeping or any particular chapter being covered, but as I have been told that I need to give guidance for issue of shares, NPO, bill of exchange, and if time permits, maybe I may touch some finer points regarding examination and how to attend for the examination and how to appear for the examination, what to write in the examination, so far as the case concerned. Dear students, I'll be using English as well as Hindi for your convenience so that you grasp each and every word, and I'll try to make it as simple as possible. For your convenience, with the help of your technical support, we'll be sharing the screen as and when the time comes. And I would request you all that when the screen is shared, at that time you may take out some screenshots if you so wish. And after a few moments, I would like to put off my video and concentrate on my explanation. My video will be on for a few more minutes.
and then I'll put off my video, and so that you can concentrate on your screen sharing and explanation that is being given to you. Friends, we are starting with issue of shares. Concentrate those, especially who are the students who have taken maths and who do not have SP as the subject in 11th and 12th standard. If in this meeting we have students listening to me who have taken maths, they need more attention so far as issue of shares is concerned. Friends, issue of shares. So before explaining you anything about issue of shares, you should know what is share, what is preference share, what is equity share, how does a public company issue shares, what is share capital. Little hint I'll give you about these terms or this terminology. See, when we talk about a company or a joint stock company, it may be a private company or a public company. जब पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी इसीलिए कहा जाता है उनको बिकॉज इट कलेक्ट्स कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स. और बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मली दो मेन टाइप की शेयर्स कंपनी इशू करती है, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक इक्विटी शेयर्स. यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि हर कंपनी को, मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, हर कंपनी को स्पेशली इक्विटी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स कंपलसरी अलॉट करने ही है, इशू करने ही. और कंपनी को क्योंकि बहुत सारी कैपिटल की जरूरत होती है, ह्यूज कैपिटल मे बी व्हिच may run into crores of rupees, and contributing crores of rupees, hundreds and thousands of crores may not be possible for few individuals. So for a company, minimum members are allowed are 7 and maximum members are unlimited. मतलब एक पब्लिक कंपनी में 1000, 2000, 5000 और 5 लाख मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं. राइट? तो जब एक कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है बाय इशूइंग शेयर्स, अगर वो इक्विटी शेयर्स इशू करके कैपिटल कलेक्ट करती है उसको कहा जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके कैपिटल कलेक्ट करते है उसको कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल. तो हम जहां नॉर्मली बात करते हैं तो मोस्टली, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, मोस्टली इक्विटी शेयर कैपिटल की बात होगी जहां तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की बात है और बोर्ड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात. अब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो हर शेयर को एक ओरिजिनल वैल्यू होती है. दैट ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू. हर कंपनी के शेयर की एक ओरिजिनल वैल्यू होती है जिसको कहा जाता है फेस वैल्यू, या उसको कभी नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है. अब वो फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर हो सकता है, इट मे बी 50 रुपीज पर शेयर, इट मे बी 100 रुपीज पर शेयर, एज डिसाइडेड बाय द प्रमोटर्स और द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज कंपनी को कलेक्ट करना है 1 करोड़ रुपीस. ये 1 करोड़ वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकली बहुत छोटा अमाउंट है, हम अपने कन्वीनियंस के लिए 1 करोड़ रुपीस कह रहे हैं. तो अगर कंपनी को 1 करोड़ रुपीस कैपिटल कलेक्ट करना, तो उसके लिए कंपनी इशू कर सकती है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. अब आप बोलेंगे सर क्या जरूरी है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख, सॉरी इट इज 10 lakhs equity shares of ₹10 each. That is 10 lakhs multiplied by 10 is 1 crore. Right? या फिर कंपनी ऐसे भी कर सकती है कि it can issue 1 lakh equity shares of ₹100 each. If we multiply 1 lakh with 100, again it makes 1 crore. तो कंपनी को जब 1 करोड़ रुपए चाहिए तो वो इशू कर सकते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, और इशू कर सकते हैं 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. ये डिसाइड करते हैं प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स. अब फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे 5000 शेयर्स खरीदने हैं, मैं 5000 शेयर्स कंपनी में खरीदने की इच्छा रखता हूं, और अगर फेस वैल्यू 10 रुपीस है
तो मुझे भरना पड़ेगा 5,000 इंटू 10, 50,000। कोई और बंदा 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, कोई और बंदा 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, कोई और बंदा 500 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, कोई मे भी सिर्फ 100 शेयर्स के लिए अप्लाई। अब कंपनी अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंपनी ये पूरा 10 रुपीज फेस वैल्यू एक ही साथ कलेक्ट कर सकती है, और या फिर इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को कन्वीनियंस देने के लिए कलेक्ट कर सकती है इन इंस्टॉलमेंट्स। कंपनी में कलेक्ट दिस फेस वैल्यू इन इंस्टॉलमेंट्स। नॉर्मली वो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी। अब आप कहेंगे कि सर इंस्टॉलमेंट्स कितने होंगे, 2 या 3 या 4 या 5? अगेन दिस इज डिसाइडेड बाय द प्रमोटर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। हम यहां प्रिज्यूम कर रहे हैं, हम यहां अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी 5 इंस्टॉलमेंट्स कलेक्ट कर रही है और शेयर्स की फेस वैल्यू और शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज। और हम यहां अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी कैसे कलेक्ट करेगी, 3 rupees per share as application money. I repeat, 3 rupees per equity shares as application money. 2 rupees as allotment money. 2 rupees as first call. 2 rupees as second call. And 1 rupee as final call. मैं फ्रेंड से रिपीट करना चाहूंगा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 5 इंस्टॉलमेंट, हो सकता है 4 इंस्टॉलमेंट हो। अगर 4 इंस्टॉलमेंट हो गए तो कैसा होगा, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। या फिर हो सकता है कि सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट हो, उस हालत में इंस्टॉलमेंट्स कैसे होगी, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे एग्जांपल में हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी 5 इंस्टॉलमेंट्स कलेक्ट करे, दैट कंपनी इज कलेक्टिंग फेस वैल्यू इन 5 इंस्टॉलमेंट्स। 1, application money rupees 3 per equity share. 2, allotment money rupees 2 per equity share. 3, first call rupees 2 equity share. Next, second call rupees 2 equity share. And last, third and final call rupees 1 equity share. देखिए हमने कैसे लिया, 3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. That is 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9 and 9 plus 1 10। यानी एक शेयर पर शेयर होल्डर को भरना 10 रुपए एक शेयर पे। इसका मतलब अगर मुझे 100 शेयर्स खरीदने हैं तो मैं पेमेंट कैसे करूंगा, 300 plus 100 into 3 as application money, 200 100 into 2 as allotment money, 200 that is 100 into 2 as first call, 200 as 100 into 2 as second call, 100 as the final call, 100 into 1. 300 200 300 200 500, 500 200 700, 700 200 900, 900 और 100 1000। तो ये शेयर होल्डर की कन्वीनियंस के लिए कि उसको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दी जाती है। और इंस्टॉलमेंट जैसे मैंने कहा होता है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, देन कॉल मनी। Calls may be 1 call or 2 calls or 3 calls as decided by the board of directors or promoters of the company. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे एग्जांपल में 3 rupees per equity share as application money, 2 rupees per equity share as allotment money, 2 rupees per equity share as first call, 2 rupees per equity share as second call, and 1 rupee per equity share as the third and final call. Now the question is कि जब हम ये पैसा कलेक्ट करते हैं तो कंपनी अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करे। This is what you have to learn in the chapter issue of shares. What journal entries company will be passing, or what journal entries will be passed in the journal of the company when it collects application money, when it collects allotment money, when it collects first call money, when it collects second call money, when it collects third call money. ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं
मैंने शेयर्स अप्लाई किए, मैंने एप्लीकेशन मनी भर दिया, मुझे शेयर्स अलॉट हुए, मैंने अलॉटमेंट मनी भी भर दिया, मैंने कॉल मनी भी भर दिया, फर्स्ट कॉल, लेकिन सेकेंड कॉल और थर्ड कॉल मनी मैंने नहीं भरा। अब मुझे कहा जाएगा डिफॉल्टर, आई एम अ डिफॉल्टर बिकॉज कंपनी हैज डिमांडेड कॉल मनी बट आई नॉट पेड, और कंपनी हैज डिमांडेड अलॉटमेंट मनी, आई आर नॉट पेड। तो कंपनी मुझे रिमाइंडर भेजेगी कि भाई आप कॉल मनी भरो, नहीं तो आपके शेयर्स फॉरफीट यानी कैंसिल कर दी जाए। एक रिमाइंडर, दो रिमाइंडर, फिर वार्निंग नोटिस भेजेगी। अगर मैंने वार्निंग नोटिस के बाद भी कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी नहीं भरा तो कंपनी को पावर है, कंपनी को अथॉरिटी है, कंपनी के आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी रूल्स के हिसाब से कंपनी मेरे शेयर्स फॉरफीट यानी कैंसिल कर देगी। दैट इज कॉल्ड एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर आप एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी टाइम पे भरते हैं देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पर अगर आपने अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी टाइम पर नहीं भरा तो आपके शेयर्स कैंसिल यानी फॉरफीट हो सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर है, डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। पहले आपको रिमाइंडर आएगा, सेकेंड रिमाइंडर आएगा, वार्निंग नोटिस आएगा, और अगर आप वार्निंग नोटिस मिलने के बाद भी आप कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी नहीं भरते हैं तो डायरेक्टर्स अपनी एक मीटिंग करते हैं जिसको बोर्ड मीटिंग कहते हैं, उसमें रेजोल्यूशन पास करते हैं और आपके शेयर्स को फॉरफीट किया जाता है यानी कैंसिल किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और फिर फॉरफीचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, एप्लीकेशन मनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, अलॉटमेंट मनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है कि जर्नल एंट्रीज कौन सी पास की जाए। वो जर्नल एंट्रीज अभी हम सीखने जा रहे हैं। वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक्निकल टीम को कि इमीडिएटली शेयर करे वो फर्स्ट क्लिप या फर्स्ट जो हमारा क्लिपिंग बनाया गया है। अब सब स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपके सामने है। आई होप सबके सामने, सबके स्क्रीन पर विजिबल है। आप चाहे स्टूडेंट्स चाहे तो उसको जूम करके देख सकते हैं। द स्टूडेंट्स कैन जूम that screen and just have a good look at the journal entry. Each and every journal entry I'll explain you कि वो अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है और अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, मैं रीजनिंग बताऊंगा। बुक कीपिंग इज अ परफेक्ट साइंस। बुक कीपिंग tells you why you are debiting the account and why you are crediting the account. So friends, students, please concentrate. The first journal entry, the first accounting entry for issue of shares is when the company receives share application money. When the company receives share application money. और ये application money भरता कौन है? ये application money भरती है पब्लिक। तो कंपनी को ये पैसा मिल रहा है और ये कंपनी का पैसा डायरेक्टली बैंक में जमा होता है। तो बैंक में जब पैसे जमा हो जाएंगे तो बैंक रिसीवर है और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स, जो टोटल एप्लीकेशन मनी मिला, मे बी 10 lakhs, मे बी 20 lakhs, मे बी 1 crore, मे बी 5 crores, जो भी टोटल मनी मिला एप्लीकेशन मनी, उसके अमाउंट से हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। राइट? जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
ये कौन से ट्रांजैक्शन के लिए एंट्री है? ये एंट्री है फॉर एप्लीकेशन मनी received from the applicants, from the public who have applied for the shares. So the total application money mil raha hai, maybe 10 lakhs, maybe 20 lakhs, maybe 5 lakhs, maybe 50 lakhs, maybe 1 crore. With that amount, bank account will be debited, and with the same amount, share application account will be credited. The journal entry will be bank account debit to share application account. And narration will be being application money on dash equity shares at rupees dash per share received and deposited in bank. अब यहां पे थोड़ा मैं आपको और टेक्निकल क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा. अगर आपके बोर्ड क्वेश्चन पेपर में इक्विटी शेयर वर्ड लिखा हुआ है तो आप शेयर एप्लीकेशन के जगह इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना. अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है तो आप यहां लिखना टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन. But you have to name the type of the capital, whether it is equity share application or whether it is preference share application. क्योंकि मैंने आपको बताया at the start of my explanation, shares majorly दो तरह के होते हैं, preference shares and equity share. और उसमें भी mostly equity share. तो मैं convenience के लिए यहाँ पे equity share word use करूँगा. तो हमारा journal entry क्या होगा? Bank account debit to equity share application account. I hope the things are clear. You may very well type yes in your chat box if you understood, and if any doubts, you can definitely raise in the chat box. Can I have few yes for the first entry? Zara Khan says yes. Kriti Begani says yes. Kushi Pujari says yes. Chutika Parab says yes. Samruddhi Deshmukh says yes. It's great, great, great enough. Thank you, thank you. और बेटा frankly अगर आपको कुछ डाउट भी है तो आप बोलना कि हाँ सर नहीं समझा है. नो लिखेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगने वाला. I am there to explain once or twice or thrice till you understand the concept. Important concept should be clear. ठीक है? हाँ, सेकेंड एंट्री जो होती है बिल्कुल लॉजिकल एंट्री है. क्यों लॉजिकल है मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. सेकेंड एंट्री में हम ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करेंगे और इस एंट्री को ट्रांसफर एंट्री कहा जाता है. आप बोलेंगे सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करके इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में. और जब हमें कोई अकाउंट क्लोज करना होता है तो अगर हम वो प्रीवियस एंट्री में अकाउंट क्रेडिट कर चुके हैं तो अब डेबिट करना. आप देखेंगे हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया है, तो अब हमें शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किया है फर्स्ट एंट्री, तो अब हमको डेबिट करना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए. और हम उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे टू अ न्यू अकाउंट कॉल्ड एज शेयर कैपिटल अकाउंट. जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया, द amount collected by the company by issuing shares is called as share capital. जैसे सोल ट्रेडर के लिए कैपिटल होता है, पार्टनर्स के लिए कैपिटल होता है, कंपनी में कैपिटल के जगह पे वर्ड होता है शेयर कैपिटल. और आपने 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड सीखा है कैपिटल एक लायबिलिटी है, कैपिटल एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और लायबिलिटी मेरे बच्चों हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. तो कैपिटल क्रेडिट होता है, वैसे यहाँ शेयर कैपिटल भी क्रेडिट. शेयर कैपिटल लायबिलिटी है. सोल ट्रेडर के लिए कैपिटल, पार्टनरशिप के लिए कैपिटल, लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए शेयर कैपिटल है वो सेम. जैसे कैपिटल लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल भी लायबिलिटी है. और जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, समझा हुआ है, शेयर कैपिटल एक लायबिलिटी और लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. तो यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना. This is called as transfer entry for transferring application money to share capital account. This is called as transfer entry for transferring share application money to share capital account, for which the journal entry will be share application account debit
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर मैं आपको रीजनिंग पूछूं कि बेटा हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, आपका तुरंत आंसर होना चाहिए कि सर क्योंकि हमको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करना है। प्रीवियस एंट्री में हम डेबिट क्रेडिट कर चुके हैं, क्रेडिट को क्लोज करने के लिए अब डेबिट कर रहे हैं। और फिर हम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है कंपनी के लायबिलिटी में। और अगर कभी भी आप कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल हमेशा लायबिलिटी साइड आता है एज ओनर्स फंड्स। ये आपको और ध्यान में आएगा जब आप एक चैप्टर रेफर करोगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस चैप्टर में देखोगे तो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाई देगा, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओनर्स फंड्स। क्योंकि ये पैसा कंपनी का नहीं है। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, जब कंपनी बंद होगी तो ये पैसा लौटाना पड़ेगा। So my dear friends, my dear lovely students, is second entry very clear? The concept is very clear. This is called as transfer entry for transferring share application to share capital. Journal entry will be share application account debit to equity share capital account. Immediately yes for those who understood it. A few yes will be appreciated. Yes, great. Jeet Jain, great. Kushi Pujari, great. Yes, yes, yes. Thank you, all of you. Great, wonderful, wonderful, wonderful. Stop sharing. Yes, concentrate again. And now we come to the third entry, which is called as when allotment money is due. When अभी आप बोलेंगे सर इसकी मीनिंग क्या है? अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी होता है जब कंपनी एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट करती। पहले आप पब्लिक के लोग शेयर्स अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन मनी बैंक में जमा करते हो, फिर एप्लीकेशन फॉर्म की सॉर्टिंग होती है, फिर डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं किसको शेयर्स अलॉट करने हैं, कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, और फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है। ड्यू मतलब इट इज रिसीवेबल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो जब तीसरा जर्नल एंट्री होगा, दैट जर्नल एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, अब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, या आप लिख सकते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ध्यान में रखना, पैसा मिला नहीं है, ये कंपनी अकाउंट में दिखा रही है कि ये अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला है। क्या दिखा रही कंपनी? ये एंट्री पास करके दैट अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम द शेयर होल्डर और ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जो टोटल अलॉटमेंट मनी, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट किए और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, 10 रुपए, तो होगा 1 लाख इंटू 10 यानी 10 लाख रुपीस जो टोटल अलॉटमेंट मनी मिलना है। अमाउंट तो आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, कैलकुलेशन आपको करना है एग्जामिनेशन कि अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू है। और उसका तीसरा एंट्री है शेयर अलॉटमेंट ड्यू का शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट जितना मिलना है टू शेयर कैपिटल। और फिर इमीडिएटली नेक्स्ट फोर्थ एंट्री होती है जब ये अलॉटमेंट मनी एक्चुअली मिलता है। जब एक अलॉटमेंट मनी एक्चुअली मिलता है तो शेयर होल्डर पैसा कहां जमा करेगा? बैंक में। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि हमको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फिर से क्लोज करना है। अगर आप तीसरा और चौथा एंट्री कंपेयर करोगे ना तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आएगा। कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ एंट्री। इन द थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज डेबिट एंड इन द फोर्थ एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज क्रेडिट, क्योंकि आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा,
सेकेंड कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, थर्ड कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जैसे जैसे आप एंट्री पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे ये एप्लीकेशन मनी अकाउंट, अलॉटमेंट मनी अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट, सेकेंड कॉल मनी अकाउंट, थर्ड कॉल मनी अकाउंट, ये अकाउंट्स ऑटोमेटिकली क्लोज होते जाएंगे। और रहेगा सिर्फ इतना ही, शेयर कैपिटल अकाउंट, वो क्लोज नहीं होगा और वो रिफ्लेक्ट होता है फाइनली इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो अब तीसरे एंट्री में जब शेयर अलॉटमेंट ड्यू है, एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और आई कैन मेक इट मोर स्पेसिफिक, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब ये एक्चुअली मिलता है, बैंक से कलेक्ट होता है, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आएगा, मैं बार बार रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स को, ध्यान दीजिए। थर्ड और फोर्थ एंट्री में आपका अलॉटमेंट अकाउंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है। आफ्टर पासिंग फोर्थ एंट्री योर अलॉटमेंट अकाउंट गेट्स ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। अब आपको फर्स्ट कॉल के लिए, सेकेंड कॉल के लिए, थर्ड कॉल के लिए एंट्री सिमिलर नजर आए। आई होप एंट्री नंबर 3 and 4 is clear. Few quick yes from the students. Entry number 3 and 4, I hope it is clear. Anush says yes. Ms. Van Zahara says yes. Aditya says yes. Thank you all. Sheikh Simin says yes. Very good. Enough beta. Pooja Patel says yes. Enough of yes. I continue. Thank you. Thank you for your quick understanding of the concepts. Okay, entry number 5, first call due. जैसे आपको मैंने बताया था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, हमारे प्रिजम्पशन है, हमारी असम्पशन है, एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी ₹2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल मनी ₹2 पर शेयर, सेकेंड कॉल मनी ₹2 पर शेयर, थर्ड एंड फाइनल कॉल मनी ₹1 पर शेयर। उसके हिसाब से हम ये जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल सेम आपको सिमिलर, अगर आप थर्ड फोर्थ एंट्री और फिफ्थ सिक्स कंपेयर करोगे ना, सिमिलर आंसर आपको दिखाई देगा, सिमिलर जर्नल एंट्री, सिर्फ अलॉटमेंट के जगह कॉल वर्ड आया। जैसे वहां शेयर अलॉटमेंट था, यहाँ शेयर कॉल है। देखो कितनी इजी है, कितना इजी। इफ यू कंपेयर एंट्री नंबर थर्ड विथ फिफ्थ, यू विल फाइंड सिमिलैरिटी। थर्ड में शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिफ्थ में शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिमिलर है। ये फर्स्ट कॉल का जितना भी पैसा, टोटल पैसा जमा होगा, एक्चुअल पैसा जो जमा होगा, वो टोटल अमाउंट जो जमा होगा, उस अमाउंट से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर से हम फाइनल फर्स्ट कॉल को क्लोज करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो जब ड्यू में कर रहे हो ना, ड्यू में आपको पूरा अमाउंट करना है जो ड्यू है। फर्स्ट कॉल जितना भी ड्यू था, जैसे 1 लाख शेयर्स इंटू ₹2, 2 लाख, तो ड्यू में कितने अमाउंट लिखना है? द टोटल अमाउंट जो रिसीवेबल है। ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां ड्यू है, पर जब एक्चुअली रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट में जो एक्चुअल, सपोज एक शेयर होल्डर है, उसने ₹2 फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, 100 शेयर है उसके पास, तो वो ₹200 कम भरे गए हैं, तो वो ₹200 कम करके आपको लिखना पड़ेगा इसमें, जब आप एक्चुअली लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो ड्यू में फुल अमाउंट लिखना है, और बैंक अकाउंट जब लिख रहे हैं, जब एक्चुअली जो मिला है वो लिखना, ठीक है। एंट्री नंबर 5 and 6। तो आपका जो पहला स्लाइड है उसमें 6 जर्नल एंट्रीज थी। I hope all 6 entries are clear. Any doubt? Please raise in your chat box. 1 minute we have. Any doubts in the chat box, please? Or else we'll move to the next slide. Okay. No message in chat box. We are
moving to the next slide. Next slide, please, technical team. Slide number 2. Great. देखो बेटा, अभी आपका एंट्री नंबर 7 मेरे ख्याल से स्क्रीन पर है. अगर आपको और ध्यान से देखना है तो जूम कर लीजिए अपने अपने लैपटॉप पे या फिर अपने अपने सेल फोन पे. लैपटॉप पे तो और क्लियर नजर आ जाएगा. जो मोबाइल फोन या सेल फोन यूज कर रहे हैं वो आप बिल्कुल जूम कर सकते हैं. सेकेंड कॉल के लिए देखो, सेकेंड कॉल ड्यू में सेम एंट्री है, सिर्फ फर्स्ट के जगह सेकेंड वर्ड है. शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना इजी है. एंट्री नंबर 5 एंड एंट्री नंबर 7 आर सेम. एंट्री नंबर 6 एंड एंट्री नंबर 8 आर सेम. सिर्फ वहां फर्स्ट कॉल लिखा है या सेकेंड कॉल. उसी तरह एंट्री नंबर 9 एंड 10 थर्ड कॉल के लिए. एंट्री नंबर 9 इज फॉर थर्ड कॉल ड्यू and entry number 10 is for third call received. Entry number 5, 7, 9 compare करो. Entry number 7, 9 compare करो. Entry number 8, 10 compare करो. आपको सेम नजर आएगा. सिर्फ 7 में सेकेंड कॉल लिखा है, 9 में थर्ड कॉल लिखा है, थर्ड और फाइनल कॉल. 8 में भी वैसा ही है, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल. तो जब हमें थर्ड और फाइनल कॉल मिलता है, एंट्री होगी. मिलता है जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल. जब वो ड्यू होता है, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल. I hope the concept is clear. I hope the entries are clear. A few years if you understood all the 10 journal entries. पहला एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड है. दूसरे 2 एंट्रीज जो हैं, पहले 2 एंट्रीज एप्लीकेशन मनी से, दूसरे 2 एंट्रीज जो है वो अलॉटमेंट मनी से. तीसरे 2 जो नेक्स्ट 2 का सेट है. पहले 2 का जो सेट है एप्लीकेशन मनी का, वो 2 एंट्रीज हैं. अलॉटमेंट मनी के लिए 2 है. ठीक है. फर्स्ट कॉल के लिए 2 है, सेकेंड कॉल के लिए 2 एंट्रीज है, थर्ड कॉल के लिए 2 एंट्रीज है. टोटल 10 एंट्रीज. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. I hope I'm not going fast. My speed is okay. If at all अगर मैं फास्ट जाऊं, थोड़ा अपने हिसाब से जाऊं, तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे रिमाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देखो बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट. ये जो पहले 10 एंट्रीज थी ना, ये बहुत इजी थी. अब ये एंट्री है जिसको हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं, ये एंट्री डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, पर अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मींस टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी इन टाइम. अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी के पैसे डिमांड करने के बाद भी, अलॉटमेंट मनी कंपनी ने डिमांड किया, कॉल मनी कंपनी ने डिमांड किया, मांगा, घर में नोटिस भेजा, लेटर भेजा, रिमाइंडर भेजा, वार्निंग नोटिस भेजा, फर्स्ट रिमाइंडर भेजा, सेकंड रिमाइंडर भेजा, वार्निंग ने भाई आप अलॉटमेंट मनी भरो. जैसे बेटा कैसे होता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होती है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 महीना नहीं भरते हैं, 2 महीना नहीं भरते हैं, हमें एक वार्निंग दिया जाता है, और उसके बाद भी हम लाइट का बिल नहीं भरेंगे तो बिजली काट दिया जाता है, बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है. वैसे भी कंपनी क्या करेगी अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी नहीं भरता है? अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी नहीं भरता है तो कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल यानी फॉरफीट कर देती है. ध्यान दीजिए स्पेलिंग पे, फॉरफीचर, FORFEITURE. Forfeiture means cancellation of shares in the simplest of the terms. और सिर्फ एक ही रीजन होता है फॉरफीचर का, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी इन टाइम इन स्पाइट ऑफ वेरियस रिमाइंडर्स एंड वार्निंग नोटिस. तो कंपनी आपको पहले रिमाइंड कराएगी, फिर दूसरी बार रिमाइंड कराएगी, फिर वार्निंग नोटिस भेजेगी, और वार्निंग नोटिस में लिखा होगा
अगर आपने 14 दिन के अंदर कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी नहीं भरा तो आपके शेयर्स फॉरफिट कर देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। अब सवाल ये है, ये तो मीनिंग हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या होगा जब शेयर्स कैंसिल होते। देखो, जब हमने शेयर्स अलॉट की तो शेयर कैपिटल क्रिएट हुआ। इसके लिए आपने याद होगा, हमने 1 to 10 एंट्रीज में जहां भी शेयर कैपिटल आया हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट किया, और शेयर कैपिटल लायबिलिटी है। लेकिन अब ये कैपिटल जो है, क्योंकि शेयर्स कैंसिल हुए हैं, तो जब हम कैपिटल मिल रहा है शेयर होल्डर से तो कैपिटल को क्रेडिट करें। अब रिवर्स एंट्री में ये रिवर्स एंट्री होगा, यानी जो शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट किया था अब हमें शेयर कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। और डेबिट कितने अमाउंट से करना पड़ेगा? जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं भरा है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ध्यान दो, कोई एक शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर्स है, एक शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन मनी भर दिया, उसने अलॉटमेंट मनी भर दिया, पर उसने कॉल मनी नहीं भरा, कंपनी ने रिमाइंडर भेजे फिर भी नहीं भरा। तभी 100 शेयर्स इक्विटी शेयर्स, एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 1000 रुपए हमारा कैपिटल कम हो गया कंपनी का, तो कंपनी का शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया जाएगा। अब बोलेंगे सर क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा दो अकाउंट, एक शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट और एक कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड, जो शेयर होल्डर को भरना था और उसने अभी तक भरा नहीं है। तो सपोज शेयर होल्डर को 1000 रुपया भरना था, उसमें वो 500 रुपये भर चुका है और अभी 500 रुपये उसने नहीं भरे, तो जो पैसा वो भर चुका है वो आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, जो फेस वैल्यू है टोटल वो आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, जो कॉल मनी उसने नहीं भरा है वो आएगा कॉल्स इन एरियर्स। तो हमारे एग्जांपल में जर्नल एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000। तो 1000 मैंने कहां से लाया? 100 शेयर्स इंटू 10 फेस वैल्यू, 2 शेयर्स फॉरफिटेड। यहां कौन सा अमाउंट लिखना है? जो अमाउंट शेयर होल्डर भर चुका है, दैट इज एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी। 3 into 5, 5 into 100 is 500, तो 2 शेयर फॉरफिटेड 500, 2 कॉल इन एरियर्स 500, क्योंकि 500 बैलेंस अभी उसने नहीं भरा है जिसकी वजह से उसके शेयर्स कैंसिल। राइट, आई रिपीट, सभी शेयर होल्डर्स ने पैसा, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, सबने ईमानदारी से टाइम पे भर दिया। एक शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज पर शेयर भर दिया था, अलॉटमेंट मनी ₹2 पर शेयर यानी 500 रुपए भर दिए थे, अभी कॉल मनी उसने भरी नहीं, कंपनी ने रिमाइंडर भेजा, 1-2 वार्निंग नोटिस, अब डायरेक्टर्स ने मीटिंग किया, उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, ये 1000 कैसे आया? 100 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू 10, 1000। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यहाँ क्या आएगा? 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो पैसा वो भर चुका। और ध्यान में रखना है, ये जो पैसा भर चुका है ना शेयर होल्डर, कंपनी उसको वापस नहीं करेगी, इसको कंपनी का प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। और जैसे को माना नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट होता है, और जो पैसा उसने नहीं भरा है 2 कॉल्स इन एरियर्स 500 वो भी क्रेडिट होगा। मैं एक बार अभी अमाउंट के साथ जर्नल हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, 2 shares forfeited account 500, 2 share calls in arrears account 500। ये शेयर्स फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट आएगा? शेयर भर चुका है, और रूल है कि कंपनी वो भरा हुआ पैसा उसको वापस नहीं करेगी, क्योंकि शेयर का फॉल्ट है, वो पैसा फॉरफिट हो गया, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। Now these are the major entries in the chapter issue of shares. What you need is practice on your end, on your side. I hope the concept is clear of forfeiture of shares and accounting treatment, accounting entry. A few yes from your side. Anush says yes. Manoj, yes. Danish Jivani says yes.
Wonderful, 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 great. Very happy to be with you. Very happy to be amongst all the wonderful students, intelligent students. My dear students, I took around 45 minutes, though I think it was in a hurry, but as I do not have much of the time allotted to me is 2 hours. And in 2 hours, I had to finish 3-4 topics. So I almost utilized 45 minutes to 50 minutes of this for issue of shares. Now we switch on to the next topic, NPO. इसमें आपको 12 मार्क का एक कंपलसरी प्रॉब्लम आता है बोर्ड एग्जाम में, जैसे आपको पता होगा. और ये बेटा इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत इजी है. बी कॉन्फिडेंट. स्टैंडर्ड बुक में जो गवर्नमेंट पब्लिश बुक है उसमें से प्रॉब्लम्स करते जाओ और आराम से उसी पे पेपर आएंगे. और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि पेपर बहुत इजी है. मैं यकीन नहीं, मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, पेपर इज वेरी इजी. सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर and that chapter is NPO. और ये स्लाइड रिमूव कर सकते हैं, नया स्लाइड मत डालिएगा टेक्निकल टीम, ये स्लाइड रिमूव कर दीजिए. ग्रेट, फैंटास्टिक, थैंक यू टेक्निकल सपोर्ट. फ्रेंड्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अब am I audible? Any issues? Shall I continue? We can hear you, sir. Yes. Okay, great. Thank you. Yes. Non-profit organization, NPO as we normally call it as. नाम से पता चलता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस संस्था का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है. देखो, एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एक पार्टनरशिप फर्म, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इनका मेन एम प्रॉफिट कमाना है. लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के मकसद से नहीं बनाई जाती, जैसे एक स्पोर्ट्स क्लब, जैसे एक लाइब्रेरी, जैसे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, जैसे एक स्कूल. प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आप कॉलेज में जहां पढ़ रहे हैं, जो मैनेज कर रहा है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिजर्विंग बोर्ड जिसको हम कहते हैं. Satram sir, your video is off. Satram sir, you can on your video. Just a second. My video is off purposely. Shall I put on the video? And students are able to see you, sir. That is right. Oh, okay. Students should see me. Okay, no issues. Yes, sir. Yeah, no issues. शक्ल में क्या रखा है यार? I'm not being allowed to. Yeah, now it's okay. Okay, बच्चा लोग, दिखाई दे रहा है वेरानी सर? Yes, sir. Yes, 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 sir. Yes, sir. नॉर्मली मेरे लेक्चर्स में मैं अपनी वीडियो ऑफ ही रखता हूँ. एनीवेज, अगर आपको लगता है तो मैं 5-10 मिनट के लिए फिर से ऑन करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स देख लें, मेरे चेहरे को समझ लें. थैंक यू. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना बेटा, वो नाम से पता चलता है कि उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है. अब बोलेंगे सर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो क्या करते? शायद किसी स्पोर्ट्स को, किसी आर्ट को, किसी म्यूजिक को, किसी कल्चर को, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए. मैं बात कर रहा था HSNC बोर्ड की, दैट इज आवर हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड. आज सोचो, इमेजिन करो, 70 साल पहले बोर्ड ने कितना एक इंपॉर्टेंट उनको विजन था कि स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने, पढ़ाना है. और ध्यान में रखना कि हमारे बोर्ड की जो HSNC बोर्ड है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि वो कभी 1 रुपया कैपिटेशन फीस नहीं लेते, क्योंकि कमाना तो उनके दिमाग में है ही नहीं ना. उनके जेब से पैसा जा रहा है. ये जो ट्रस्टीज हैं जिन्होंने से फॉर्म किया है, इनका एक ही मकसद है कि each and every student should learn. So they have started with 17 to 20 schools and colleges in and around Mumbai, where today they have their own university, HSNC University.
इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। तो वो भी एक एनपीओ ही है। हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो बोर्ड है, वो भी एक एनपीओ का बेस्ट एग्जांपल है। स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, एनजीओज होते हैं। तो ये करते क्या? ये समाज सेवा करने के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए, किसी आर्ट या कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, वो उनका मेन मकसद। अब आप कहेंगे कि सर इनके पास पैसा कहां से आता है और पैसा लगाएगा कौन? जब मालूम है प्रॉफिट होने वाला नहीं है, तो आज के मतलब और सेल्फिश वर्ल्ड में, मतलबी संसार में पैसा लगाएगा कौन? यस, यहाँ पैसा लगाते हैं जो उस संस्था को बनाते हैं, जिसको बोलते हैं मेंबर्स। वो ईयरली फीस देते हैं अपने जेब से, वॉलंटरीली। उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या कहा जाता है उसको? सब्सक्रिप्शन। और जरूरत पड़ने पर ये डोनेशंस भी लेते हैं, जनरल डोनेशंस, स्पेसिफिक डोनेशंस, फ्रॉम द कॉमन मैन, फ्रॉम द पब्लिक, फॉर द पीपल। तो ये डोनेशंस, ये है उनके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। मेंबरशिप फीस यानी सब्सक्रिप्शन, दैट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये उनके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, मतलब आमदनी उनकी। एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अंतर, जिस तरह से एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ट्रायल बैलेंस बनाती है, फिर उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सोल ट्रेडर करेगा, ये पार्टनरशिप फर्म करेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी करेगा। लेकिन एनपीओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकता, क्योंकि प्रॉफिट शब्द उनमें है ही नहीं, लॉस शब्द उनमें है ही नहीं। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या करते हैं ये एनपीओ? पूरे साल भर, फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 to 31 March 2018, I repeat, from 1 April 2017 to 31 March 2018, पूरा साल रिसिप्ट्स पेमेंट्स, ये पैसा आया, ये पैसा गया, रिसिप्ट्स पेमेंट, ये पूरे साल भर मेंटेन कर, पूरे साल का रिसिप्ट पेमेंट। और एट द एंड ऑफ द ईयर फिर उसी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में से बनाते हैं नंबर 1 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, आई नो प्रॉफिट लॉस। इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट वी हैव इनकम एक्सपेंडिचर। और दूसरा बनाते हैं बैलेंस शीट। यस, जैसे एक सोल ट्रेडर के पास एसेट्स लायबिलिटीज होती है, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स लायबिलिटीज होती है, जैसे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास एसेट्स लायबिलिटीज होती है, ठीक उसी तरह से एक एनपीओ के पास भी एसेट्स लायबिलिटीज होती है। और वो एसेट्स लायबिलिटीज रिफ्लेक्ट होते हैं उनके बैलेंस शीट में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो दो चीजें बनाते हैं। और ये चीजें कहां से बनती है? बेस क्या आधार का है? वो आधार है उनके पूरे साल का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, राइट? तो मैं ये शॉर्ट में बता दिया आपको। अब एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में आपको 12 मार्क का एक प्रॉब्लम आने वाला है, जिसमें आपको दिया जाएगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और दिए जाएंगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। उसमें से आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बहुत ही फास्ट में जाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं वो पढ़ते जाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम को कि वो एनपीओ का फर्स्ट स्लाइड बच्चों को दिखाएं, शेयर करें बच्चों के साथ। Thank you very much. You are too prompt. You are too good, technical team. Thank you, Kashish ma'am. Thank you, Afreen ma'am. देखो बेटा, आप इसको जूम करके दे सकते हैं, जो भी है। ये आपको आंसर का हिस्सा नहीं, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। This is not the part of your answer that you are going to attempt in examination. This is just a question that will be getting as in the form of receipts and pay. ये देखो रिसिप्ट साइड, जो भी पैसा मिला है। अब देखो रिसिप्ट कहाँ से, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये इसको बोलते हैं कैश का ओपनिंग बैलेंस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। उसके नीचे होगा, आप देखेंगे सब्सक्रिप्शंस जो मिले, तो मुझको मैंने मेंबरशिप फीस का, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन,
एंट्रेंस फीस है, एडमिशन फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, लिगेसीज है। यहां पर मैं लिगेसी का मीनिंग क्लियर करना चाहूंगा। एक्चुअली लिगेसी क्या होता है? अ गिफ्ट टू द एनपीओ व्हिच इज रिजल्ट ऑफ अ डीड ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन। आई रिपीट, लिगेसी, LEGACY। लिगेसी क्या होता है? लिगेसी इज नथिंग बट अ गिफ्ट। किसी व्यक्ति ने गिफ्ट दिया है, उस व्यक्ति ने एग्रीमेंट बनाया है कि भाई मेरे मरने के बाद ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये बैंक बैलेंस सो एंड सो ट्रस्ट को दे दो, सो एंड सो एनपीओ को दे दो। और उसने हो सकता है उस एग्रीमेंट में, उस गिफ्ट डीड में लिखा हो कि भाई ये जमीन जो है आप इसको मंदिर बनाने के लिए, ये जमीन आप स्कूल बनाने के लिए, ये जमीन आप कॉलेज बनाने के लिए, ये जमीन मेरा जो है वो लाइब्रेरी बनाने। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमारे मरने के बाद जो है वो हम एक किसी को डोनेट करके जाए, जो हमारे पास इतना सारा जायदाद है, पैसा है। कुछ लोग करते हैं ऐसे, तो वो है लीगेसी। वो भी रिसिप्ट में है, मतलब उस एनपीओ को किसी व्यक्ति से उसके डेथ के बाद वो गिफ्ट मिला इन द फॉर्म ऑफ लैंड और बैंक बैलेंस और मनी और कैश विथ सम जनरल और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और पर्पस। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से मिलने वाला कंसेशंस, डोनेशंस, जनरल डोनेशंस, डोनेशंस, स्पेसिफिक डोनेशंस, बिल्डिंग फंड, डिफरेंट फंड्स आते हैं, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब आप देखेंगे। क्रिकेट फीस, ट्यूशन फीस, ये ट्यूशन फीस टर्म फीस स्कूल्स के लिए एप्लीकेबल। कलेक्शन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज, लॉकर रेंट, एग्जाम फीस, ये फिर से स्कूल्स कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। रिसिप्ट साइड है। पेमेंट साइड देखेंगे, सैलरीज, करंट का सैलरीज, प्रीवियस का सैलरीज, रेंट, रेट, टैक्सेस, जो भी खर्चे नजर आएंगे आपको, एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट एक्सपेंस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। वेजेस, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगेन फॉर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स क्लब्स, इंश्योरेंस, टेलीफोन चार्जेस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज। बेसिकली आपको यहाँ पे या तो कुछ खर्चा नजर आएगा या फिर आपने एसेट खरीदा है वो नजर आएगा। मोस्ट ऑफ द केस में फर्नीचर, बिल्डिंग, ये खरीदा आपने नया ड्यूरिंग द ईयर, एसेट में इन्वेस्ट किया, फिक्स जैसे फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये न्यूज़पेपर को हम बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर वर्ड की जगह मिसलेनियस एक्सपेंसेस बेटर। ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, ये सब है। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड लास्ट बॉटम में देख रहे हैं आप, पेमेंट साइड में, ये है क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब एज ऑन 31 मार्च 2018, प्रिज्यूमिंग कि हमारा ईयर 17-18 है, तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, और राइट हैंड साइड लास्ट आइटम जो दिया गया है वो क्लोजिंग। मतलब जो रिसिप्ट साइड फर्स्ट आइटम है वो है कैश ऑन हैंड, कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2017, और राइट हैंड साइड जो कैश इन हैंड है वो एज ऑन 31 मार्च। एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट होता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, और नीचे जो दिया गया वो रिफ्लेक्ट होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर, बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर, दैट एग्जैक्टली इज द मीनिंग। आई होप ये हालांकि क्वेश्चन है तो आपको इसकी मीनिंग समझ, क्योंकि हमको क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आंसर इसको बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? Okay. I hope a few years, if you understood the receipts and payments account of a non-profit organization, a few years from the lovely students. Great. Good. Yes, same वही लोग आ रहे हैं, सेम लोग रिपीट कर रहे हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। You should, each and everyone should participate. Even if you say no, I won't mind. Though I know I'm going a bit fast due to paucity of time. मुझे पता है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, पर क्या करूं बेटा, मैं थोड़ा कंप्लीट करना चाहता हूँ 2-3 टॉपिक 2 घंटे में। वैसे तो डिफिकल्ट होता है, पर आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई एज फार एज पॉसिबल। इन केस कुछ समझ में नहीं है, यू कैन रेज द डाउट एंड यू कैन रेज इट इन द चैट बॉक्स एज एंड व्हेन वी गेट द टाइम, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। Okay, now technical team to the next slide. Technical team, next slide.
Yes, great, wonderful. You are so prompt, you are so quick. Income and expenditure account. देखो बेटा, ये है जो आपको बनाना है, और इसमें मुझे यहां पर मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा क्योंकि आंसर का पार्ट है, क्योंकि आपको लिखना है। आप जब ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो इंटरेस्टिंग बात देखो क्या है, ऊपर हेडिंग है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश, लेकिन मजे की बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंडिचर, राइट हैंड साइड इनकम। वेरी ट्रू, क्योंकि एक्सपेंडिचर डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है एज पर नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो आपको जो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे 6 कॉलम्स, एक्सपेंडिचर, लेफ्ट हैंड साइड इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट, अगेन राइट हैंड साइड इनकम्स, inner amount, outer amount, 6 columns in all. This is what you have to prepare. ठीक है। अब देखिए कुछ तो बहुत इजी है, राइट। सैलरीज एक्सपेंडिचर ही है, कुछ बताने की बात ही नहीं। ये आपने ऑलरेडी आपने ये ध्यान दिया होगा कि ये अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती, कुछ प्रॉफिट मेकिंग होती, तो ये आता था आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक इसी तरह से, राइट। वेजेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, कन्वेंस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मेडिसिन, ये हॉस्पिटल्स के लिए है, मेडिसिन के लिए जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए खर्चा, स्पोर्ट्स मटेरियल। अभी देखो ये टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज ड्यूरिंग द ईयर, कंज्यूम होता है यूज्ड, हमने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किया उसका कैलकुलेशन होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये ध्यान रखिएगा, ये ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको या तो एडजस्टमेंट में दिया जाएगा या ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, जैसे आप नॉर्मली डेप्रिसिएशन दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, वैसे यहाँ भी एक्सपेंडिचर साइड दिखा रहा है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। और फिर से राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं जो भी हमारी, देखो राइट हैंड साइड में जो इनकम होगी ना, प्लीज ध्यान देना, ये मेन जो इनकम होती है ना, जो रेगुलर इनकम बोलते हैं एनपीओ के लिए, वो होता है सब्सक्रिप्शन। जैसे मैंने बताया, जो मेंबर्स जो फॉर्म करते हैं एनपीओ को, अपने जेब से वॉलंटरी हर साल फीस देते हैं, उस एनुअल फीस को कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर मैं बहुत स्लो जाना चाहूंगा, स्लो नहीं, बहुत स्लो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट्स होता है जो स्टूडेंट्स को बहुत हैरान करता है, पर मैं आपको बता दूं लॉजिकली समझो तो बहुत इजी है। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये आपको अमाउंट जो है इनर कॉलम में लिखना है, इसमें से जो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर में मिला है उसको माइनस करना, जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला है उसको भी माइनस करना, फिर आपको ऐड करना है जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें लास्ट ईयर में मिला था, इसको कहते हैं रिसीव्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर बट इट इज फॉर द करंट ईयर, और बाद में ऐड करेंगे जो करंट ईयर का अभी तक नहीं मिला है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ड्यू बट नॉट रिसीव। तो जो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है ड्यूरिंग द ईयर, अगर उसमें से लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है तो माइनस करना है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन वो भी माइनस करना। यहां पे मैं आपको बता दूं क्यों, रीजन, क्योंकि हम ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं फॉर द करंट ईयर, तो जो फाइनल फिगर आउटर कॉलम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो करंट ईयर का एक्चुअल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर उसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है वो नहीं होना चाहिए, जो सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का है वो नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस करना है हमको उसमें से, और जो अभी तक नहीं मिला है, भले नहीं मिला है तो इसी साल का ना, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, वो ऐड करना, और जो करंट ईयर का है पर मिला लास्ट ईयर था वो भी ऐड करना। तो अल्टीमेटली हमको ये दिखाना है आउटर कॉलम में कि जो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो मिला है या नहीं मिला है,
पर वो है करंट ईयर का ही। मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे ईयर लेना जरूरी है। हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं फॉर द ईयर 2017-18, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा? 16-17। तो हमारा नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 18-19। तो नाउ आई हैव टेकन 3 years. I will call CY current year 17-18, PY previous year 16-17, NY next year 18-19. Out of this, 17-18 is the current year. So if 17-18 is the current year, what is my previous year? 16-17. What is my next year? 18-19. I repeat, previous year 16-17, current year 17-18, next year 18-19. तो हम अकाउंट्स कौन से ईयर के बना रहे हैं? 17-18 के। तो इसमें सिर्फ 17-18 की ही सब्सक्रिप्शन दिखानी है, चाहे वो रिसीव्ड हो या रिसीवेबल। अगर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 16-17 का है, वो लेस करना। अगर नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 18-19 का, वो भी माइनस करना। अगर करंट ईयर 17-18 का है पर मिला लास्ट ईयर 16-17 का, वो ऐड करना। अगर करंट ईयर 17-18 का अभी तक नहीं मिला है और मिलना है, वो भी ऐड करना है। और ये सब प्लस माइनस करके जो आप आउटर कॉलम में फिगर लाएंगे, वो होगा सब्सक्रिप्शन एज द रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द करंट ईयर। तो हमको सब्सक्रिप्शन एज रेवेन्यू रिसिप्ट होता है एनपीओ में जो रेगुलर पैसा मिलता है, और कैपिटल रिसिप्ट होता है जो वंस मिलता है, नॉन रिकरिंग, जो बार बार नहीं मिलता है वो कैपिटल रिसिप्ट, जो बार बार मिलता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट, जो बार बार खर्चा करता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो नॉन रिकरिंग खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको ये पता है तो आपको पता होगा कि हम इसको इनकम साइड दिखाएं या एक्सपेंडिचर साइड दिखाएं या एसेट साइड दिखाएं या लायबिलिटी साइड। ये मैं आपको बता दूं कितना इजी है। रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड जो भी आपको आइटम्स दिए गए हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो या तो हम इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे, या तो एक्सपेंस साइड रिकॉर्ड करेंगे, या तो लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे, या तो एसेट साइड। पांचवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारा सोच का दायरा 4 जगह पे घूमना चाहिए। शुड आई रिकॉर्ड इट एज इनकम? अगर आपको इनकम लग रहा है, इनकम में रिकॉर्ड करो। शुड आई रिकॉर्ड एज एक्सपेंडिचर? हाँ, इनकम में तभी रिकॉर्ड करना है अगर आपकी रेवेन्यू यानी रिकरिंग इनकम है तो। एक्सपेंडिचर में तभी रिकॉर्ड करना है अगर आपको रेवेन्यू, जैसे आपने देखा रेंट, सैलरी, वेजेस, कन्वेंस, ये सब तो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, ये सब तो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। इसलिए आपको रिकरिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड जाएंगे, रिकरिंग रेवेन्यू इनकम साइड जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने कोई जैसे कोई फिक्स एसेट खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्वियसली वो बैलेंस शीट में जाएगा भाई। जो मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेसिफिक डोनेशंस है, किसी ने आपको डोनेशन दिया ये कहकर कि भाई ये डोनेशन में आपको 15 लाख रुपए से आपको बिल्डिंग ही बनाना है, कहीं और खर्च नहीं करना, क्योंकि वो स्पेसिफिक डोनेशन है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड है। क्योंकि वो लायबिलिटी है, हमें जिम्मेदारी है उसमें बिल्डिंग बनानी है। अभी वो पैसा हम अपने मर्जी से खर्च नहीं करते, क्योंकि डोनर ने डोनेशन दिया है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट ने बोला, कंडीशन रखा है कि भाई ये पैसों से आपको बिल्डिंग ही बनाना है। किसी भी तरह का फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, वो लायबिलिटी साइड जाए, क्योंकि वो जो है आपका कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी साइड जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड जाए। और बाकी एसेट्स तो आपको मालूम ही, आपने सीखा ही है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, प्रिंटर्स, कैश इन हैंड। हाँ, यहाँ किसी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं होता, या कोई बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल आपको कोई नजर नहीं आएगा। ये ऐसी ऐसी चीजें आपको नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ना डेटर नजर आएगा, ना क्रेडिटर नजर आ जाएगा, ना आपको बैड डेट्स नजर आएंगे, ना आपको बैड डेट्स रिकवर नजर आएगा, ना आपको आरडीडी नजर आएगा,
आपको न्यू आरडीडी, ये सब पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकता है, ये सोल ट्रेडिंग में हो सकता है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो सकता है। यहां नजर नहीं आएंगे आइटम, भले हम बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग कॉल्ड एज डेटर्स, नथिंग कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल्स, नथिंग कॉल्ड एज जो हमारी एसेट्स, हाँ कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है, ये एसेट्स हो सकती है, यस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है, जस्ट सिमिलर, जस्ट डेप्रिसिएशन हो सकता है, सिमिलर टू ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। Am I right? अब इसमें जब आप सब आइटम रिकॉर्ड कर दोगे तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करें। क्लोज करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आपका राइट हैंड साइड इनकम साइड ज्यादा होगा, या तो आपका लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होगा। और स्वाभाविक सी बात है, अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड खर्च ज्यादा है, यानी आपके पास डेफिसिट, खर्चा ज्यादा आमदनी कम, खर्चा पूरे साल में 10 लाख, आमदनी पूरे साल में 9 लाख। फॉर एग्जाम्पल, अगर एमएम के कॉलेज को पूरे साल में 10 लाख फीस मिला और खर्चा उन्होंने 15 लाख कर दिया, तो एक्सपेंडिचर 15 लाख, फीस मिला 10 लाख, तो एमएम को 5 लाख रुपीस लॉस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 5 लाख रुपीस डेफिसिट, DEFICIT। डेफिसिट वर्ड का टेक्निकल मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग होता है जो हमें कम पड़ गया, जो हमें कम है, जो लेस, डेफिसिट शॉर्टेज। सर शॉर्टेज क्यों? भाई क्योंकि फीस बच्चों से सिर्फ 10 लाख मिला, कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों ने फीस नहीं भरा, पर खर्चा तो कॉलेज में चल ही रहा है, खर्चा हो गया 15 लाख। तो एमएम के कॉलेज का खर्चा हो गया 15 लाख और एमएम के कॉलेज को फीस मिला 10 लाख, एक्सपेंडिचर ज्यादा 15 लाख और खर्चा कम 10 लाख, 15 और 10 लाख का डिफरेंस है 5 लाख, वो 5 लाख है डेफिसिट। यहाँ पे लॉस नहीं बोलते क्योंकि एनपीओ है, तो न तो हम लॉस वर्ड यूज करते हैं, न तो प्रॉफिट। प्रॉफिट के जगह वर्ड यूज करते हैं सरप्लस, और लॉस के जगह वर्ड यूज करते हैं डेफिसिट, DEFICIT, सरप्लस, SURPLUS। वो सरप्लस कब होगा? इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। डेफिसिट कब होगा? इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन income. That surplus will be added on the liability side capital fund. Capital fund होता है जो NPO, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते वक्त जो मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया, उसको कॉर्पस फंड भी बोलते हैं। उसमें ऐड किया जाएगा अगर सरप्लस है तो, माइनस किया जाएगा अगर डेफिसिट। जैसे आप देखते हैं जब आपने सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट सीखा था लास्ट ईयर 11th में, या अभी पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट सीखा है, तो प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड करते और लॉस आप कैपिटल में से माइनस, जिसको हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस बोलते हैं। यहाँ तो ना नेट प्रॉफिट बोलेंगे नेट लॉस, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में से माइनस करो, और सरप्लस है तो कैपिटल फंड में ऐड करो। लेकिन ये हमारा खुद का कैलकुलेशन होगा एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, आफ्टर सॉल्विंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, after solving each and every item of receipts and payment account. At the end, when we total up, if expenditure is more than the income, the difference is deficit. That deficit will be deducted from the capital fund from the liability side of balance sheet. Vice versa, if income is more than expenditure, the difference is surplus. That surplus will be added in the capital fund on the liability side balance sheet. I hope the things are clear. A few yes, please. Okay, we have completed with the receipt payment account. It will be given the question. We have also completed with income expenditure. Now I humbly request the technical team to switch over the next slide, which is probably the balance sheet. Yes, dear students,
Please look at this. This will be quite familiar to you. अगर आप जूम करके देखेंगे आपको बहुत familiar लगेगा. Similar बहुत सारी बातें आपको नजर आएगी इसमें. बहुत सारी चीजें नजर आएगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपने 11th में भी किया हुआ बैलेंस शीट, इवन 12th के पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में किया हुआ है. हाँ, कुछ टर्म्स आपको नए नजर आएंगे, शायद एंडोमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, चैरिटी फंड. फंड को स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है और उसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज करना है, तो लायबिलिटी होती है एनपीओ की, तो उसमें यूज करें. तो लायबिलिटी साइड देखिए, कैपिटल फंड. ये कैपिटल फंड आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा हमेशा. उसका ओपनिंग बैलेंस जो होता है, इसमें जो डोनेशंस हमने कैपिटलाइज किए, जिसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं, या फिर एडजस्टमेंट में कभी दिया जाता है कि मैं इतना डोनेशन कैपिटलाइज करूं. कैपिटलाइज करूंगा तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करके ट्रीट करो, या कैपिटल रिसिप्ट करके ट्रीट करो. एंट्रेंस फीस अगेन कैपिटल मतलब कंसीडर एज कैपिटल रिसिप्ट, मे बी गिवन इन द एडजस्टमेंट स्पेसिफिकली. सरप्लस है तो ऐड करो, डेफिसिट है तो माइनस करो. फिर कुछ फंड्स हैं, बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, एंडोमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड. एक स्पेशल पर्पस है, उसमें ही यूज करना है. तो ये लायबिलिटी है उस एनपीओ की, उसमें यूज करें. क्रेडिटर्स हैं, यहाँ क्रेडिटर्स सप्लायर नहीं हो सकते हैं. यहाँ पर जिन्होंने हमें कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई किया क्रेडिट पे, वो है. ये यहाँ ये कोई वो नहीं है. बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम. ये प्री रिसीव्ड इनकम होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. जैसे अभी मैंने कहा था, एग्जांपल दिया था कि अगर हमको 18-19 की सब्सक्रिप्शन कोई मेंबर करंट ये 17-18 में दे देता, तो है वो 18-19 की, तो ये लायबिलिटी साइड आएगा, बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन एडवांस. अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है तो वो लायबिलिटी साइड दिखाएगा. लाइफ मेंबरशिप फीस, इससे लाइफ मेंबरशिप फीस जो है, जो एक मेंबर ने लाइफ टाइम, ये हर साल 2,000 देने के बाद एक ही साथ उसने 2 लाख दे दिया कि भाई ये एक साथ ले लो, तो वो लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वो वन टाइम रिसिप्ट. ये नॉन रिकरिंग रिसिप्ट है, जिसको मैंने कैपिटल रिसिप्ट नाम दिया था, या हम बुककीपिंग में से कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं. फिर आप एसेट साइड आएंगे तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ये क्लोजिंग बैलेंस लिया गया कहां से? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जो आपके राइट हैंड साइड लास्ट आइटम, वहां से लिया है. फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्लेग्राउंड, मोटर व्हीकल, लाइब्रेरी बुक्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स का मतलब मेडिसिन है, मतलब ये चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के लिए होता है. लोन्स एंड एडवांसेस, एक्रूड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो ब्याज हमें मिलना है. प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तो आपको मालूम ही. आउटस्टैंडिंग इनकम इज इनकम रिसीवेबल, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव. जैसे सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेकिन अभी तक मिला नहीं, वो भी यहाँ पे आएगा. और स्वाभाविक बात है कि अगर आपका बैलेंस शीट टैली होता है, यानी आपने एक्यूरेटली अटेम्प्ट किया है, अगर टैली नहीं होता है तो समवेयर समथिंग इज रॉन्ग. और लकीली इस साल आपको 80 मार्क्स के पेपर के लिए 3.5 आवर्स मिलने वाले हैं, तो बी वेरी स्लो इन कैलकुलेशन. वैसे तो मैं बच्चों को बोलता हूँ बी फास्ट इन कैलकुलेशन. This year you have liberty to take certain time and your own time for calculation, so that there should be no calculations mistakes, no totaling mistakes. आपको 3.5 घंटे मिलने वाले हैं, 3.5 hours already decided by the board, Mumbai board, right? अभी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं बेटा, जो नए स्लाइड्स आएंगे, जो एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है बिलो द कैप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, उसको हम थोड़ा कंसीडर करते हैं, maybe for 10-15 minutes, and then we can switch over. Especially जो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट होगा वो हम देखें, राइट? आई होप बैलेंस शीट में थोड़ा फास्ट गया, क्योंकि बैलेंस शीट आप फेमिलियर है ऑलरेडी. A few yes from your side, please, lovely students, lovely audience. Anush says yes. वही नाम आ रहे हैं, मुझे पता नहीं ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं. शीला यस, शिफा इनफैक्ट, कोमल गुप्ता यस, प्रीति बेगानी यस, अदिति साहू, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम्स प्रॉपर्ली. आदित्य, मनोज, थैंक यू, यू आर ऑल वंडरफुल. You are all patient listeners.
Yes, new name is there now. Tika Para. Great. Sachin Mishra. Yes. Okay, beta. I request now technical team to switch over to the next slide, please. ध्यान से देखो बेटा, ये लोग ये आपको एडजस्टमेंट्स नजर आएंगे. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है. ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके बताऊंगा. इसको हम कहते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो एक बैलेंस शीट दिया गया जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, लास्ट ईयर बैलेंस शीट. कंसीडरिंग कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च 2018 का, यानी हमारा करंट ईयर है 17-18, तो हमारा लास्ट ईयर होगा 16-17. तो जो बैलेंस शीट है ना वो 16-17 की बैलेंस शीट, जिसमें लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट साइड लिखा है 800. फिर आप देखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड दिया बाय स्टेशनरी परचेस ड्यूरिंग द ईयर 7,000. ठीक है. फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया, एडजस्टमेंट में दिया है ₹1,500 इज आउटस्टैंडिंग बिल फॉर स्टेशनरी. और दूसरा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च वाज 1,300. तो देखो हमारे पास टोटल फिगर्स कितने हुए. एक 800 जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहेंगे, 7,000 जो रिसिप्ट पेमेंट में इसको बोलते हैं स्टेशनरी परचेस ड्यूरिंग द ईयर. फिर जो हमारा स्टेशनरी का एक बिल अभी तक पेएबल है, मतलब स्टेशनरी हमने खरीदा है पर उसका बिल पे नहीं किया, 1,500 का एक आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल है, मतलब अनपेड है. और ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च जो करंट ईयर एंड हो रहा है, तो उसमें हमारा स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक जिसको बोलेंगे वो 1,300. तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? मतलब हमको इसमें आप बोलेंगे सर ये क्यों दिया गया है? ये हमें दिया गया है एक मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए, वो है कि कितने वैल्यू का स्टेशनरी हमने ड्यूरिंग द ईयर यूज किया. इसको कहते हैं स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. क्या बोलते हैं? स्टेशनरी कंज्यूम्ड यानी यूज्ड. अब आप स्टेशनरी तो समझते हैं. देखो स्टेशनरी होता है अकाउंट बुक्स, फाइल्स, पेन, पेपर, कंप्यूटर स्टेशनरी, कंप्यूटर में लगने वाले जो A4 पेजेस होते हैं जिसे हम प्रिंटर वगैरह में यूज करते हैं, या कंप्यूटर में कभी कोई स्टेशनरी लगती है, तो ये सब चीजें मिलके बोलते हैं स्टेशनरी है. तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टेशनरी का यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है. उसके पेपर्स होंगे, A4 साइज पेपर्स होंगे, कुछ प्रिंटिंग पेपर्स होंगे, कुछ कंप्यूटर स्टेशनरी होगी, कुछ अकाउंट बुक्स होंगे, कुछ रजिस्टर्स होंगे, कुछ पेन्स होंगी, कुछ इंक बॉटल्स होंगी, कुछ ऐसी चीजें रहेगी जो स्टेशनरी अकाउंट में आते हैं. तो फॉर्मूला है इसके लिए, कैलकुलेशन के लिए. सबसे पहले ये जो हम स्टेशनरी यूज किए ये कैलकुलेट करना है. तो स्टेशनरी यूज करना, सपोज हमने, मैं एक इमेजिनरी फिगर बोल रहा हूँ, मैंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंसिडर करके नहीं, सपोज हमने ड्यूरिंग द 2000 का स्टेशनरी यूज किया, तो ये तो 2000 खर्चा है हमारा, एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए. तो ये सब हम एक्सपेंडिचर साइड एक फॉर्मूला लिखे. कैसे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ये कहां दिया है? ओल्ड बैलेंस शीट में. हमारे एग्जांपल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 800 रुपए. ये इनर कॉलम में लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड लिखना है. क्यों करें इतनी सारी मेहनत? ये कैलकुलेट करने के लिए कि ड्यूरिंग द ईयर हमने स्टेशनरी कितना यूज किया. इसमें ऐड करेंगे कि हमने कितने की स्टेशनरी परचेस की. आपके पेमेंट साइड दिया है कि हमने 7,000 की स्टेशनरी परचेस की. ऐड इन दैट जो एक अनपेड बिल है. अब जो 1,500 का बिल है अनपेड हो, तो स्टेशन खरीदा होगा तभी तो सप्लायर ने बिल भेजा है ना भाई. तो दिस इज ऑल्सो एड गोज एज स्टेशनरी परचेस, बट अभी तक उसका अकाउंट सेटल नहीं किया, वो पे भी नहीं किया. तो 1,500 का और स्टेशनरी परचेस किया पर अभी तक बिल पे नहीं किया है. तो 800 और 7,000 और 1,500 ये सब ऐड होंगे, फिगर्स ऐड करेंगे, इनर कॉलम में आएगा 9,300. तो अभी तक हमने कौन से 3 आइटम ऐड किए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ऐड स्टेशनरी परचेस ड्यूरिंग द ईयर, ऐड अनपेड बिल. अनपेड में इजी वर्ड बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे अनपेड बिल, अनपेड स्टेशनरी बिल. तो 800 plus 7,000 plus 1,500 that makes 9,300. और इसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक 1,500 रुपए, सॉरी 1,300 रुपए इसमें से माइनस किया, तो ड्यूरिंग द ईयर 8,000 का स्टेशनरी यूज हुआ. और ये 8,000 एक्सपेंडिचर साइड दिखाया जाएगा आउटर कॉलम. ये पूरा कैलकुलेशन कहाँ दिखाना है? एक्सपेंडिचर कॉलम. ये सब कैलकुलेशन है कॉलम में. आखिरी वाला कैलकुलेशन 8,000 जो है आउटर कॉलम में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 8,000 का स्टेशनरी यूज हुआ. अब स्टेशनरी यूज हुआ मतलब खर्चा है. दिस इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर टू बी शोन एज एक्सपेंडिचर. आई रिपीट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, add purchase of stationery,
add unpaid bill of stationery, less closing stock of stationery, whatever amount we get after calculation on the outer column of expenditure, column of income expenditure account. Left hand side, expenditure category. I hope it is clear. So this adjustment explains us how to calculate the stationery consumed or used during the year with the given item, stock of stationery, opening and closing, purchase, and also closing stock, and also outstanding bill. Next slide, please. Yes. बहुत बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिसिप्ट साइड सब्सक्रिप्शन दिया गया है, 16-17 का सब्सक्रिप्शन, 17-18 का सब्सक्रिप्शन, 18-19 का, और इसके साथ 2 एडजस्टमेंट जोड़ दिए गए हैं। और आपको हमको इसे सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट करके रिकॉर्ड करना है। इनकम साइड कैसे दिखाएंगे और ये सब कैसे रिफ्लेक्ट किया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन है तो रेगुलर रिसिप्ट है, रिकरिंग रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, और मैंने बताया था रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार हमें मिलता है, ये मिलता है मेंबरशिप फीस हर साल, एनुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एनुअल फीस रिसीव्ड, so definitely it's an income, so to be shown on the income side but with some calculations. यहाँ पे हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट आवर करंट ईयर इज 17-18। तो प्रीवियस ईयर है 16-17, नेक्स्ट ईयर है 18-19। प्लीज ध्यान दो, मैंने आपको क्लियरली बताया था तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन इस ईयर में लेना नहीं है। तो मैं 16-17 को बोलूंगा पीवाई प्रीवियस ईयर, 17-18 को बोलूंगा सीवाई करंट ईयर, 18-19 को बोलूंगा एनवाई नेक्स्ट ईयर। सो पीवाई इग्नोर, एनवाई इग्नोर, ओनली कंसीडर 80,000। come to the solution and look at the इनकम साइड जो हमने सोल्यूशन बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम को 80,000 नजर आएगा। स्टूडेंट पूछेगा सर 1500 क्यों नहीं दिखाया? माय आंसर, ये करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन नहीं है। फिर स्टूडेंट पूछेगा सर 18-19 का क्यों नहीं दिखाया? मैं बोलूंगा बेटा ये नेक्स्ट ईयर का है, ये भी करंट ईयर का नहीं है। सिर्फ करंट ईयर का ही दिखाना है, चाहे वो रिसीव्ड है या रिसीव्ड, वो भी करंट ईयर का जो शायद पिछले साल में लिखा है 16-17 में। अब हम एडजस्टमेंट सीट करते हैं। Adjustment number 1, subscription outstanding for the current year 7,000. Yes, this is subscription for the current year. Clear word है CY. ये इसमें ऐड करना है। देखो ऐड किया गया है क्या? Add subscription, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 की तरफ ध्यान देना। ये सब्सक्रिप्शन अभी भी हमें मिलना है। 80,000 मिल चुका है और 7,000 करंट ईयर का अभी भी मिलना है। Adjustment number 2, outstanding subscription for 16-17 was 2,000. ये outstanding 16-17 का हमारा किधर वास्ता है भाई, हमें इसको ध्यान नहीं देना है। Subscription received in advance during the last year. लास्ट ईयर एडवांस मिला था ना 16-17 में, 17-18 का मिला था। ये 8,000 यकीनन 18 का है, 17 मिला पिछले साल था, पिछले साल एडवांस में मिला था ना, मैंने पिछले साल एडवांस में मिला था, मतलब 16-17 में एडवांस में किसका मिलेगा? 17-18 का। तो ये डेफिनेटली ऐड होगा। तो देखो 2 चीजें ऐड की गई, एक 8,000 और एक 7,000। क्या ऐड नहीं किया है मैंने यहाँ? 1,500 ऐड नहीं किया क्योंकि वो प्रीवियस ईयर, 3,500 ऐड नहीं किया क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। 2,000 जो एडजस्टमेंट में है वो भी आउटस्टैंडिंग 16-17 का है। हम 16-17 के अकाउंट नहीं बना रहे भाई, हम 17-18 के, तो सिर्फ 17-18 का सब्सक्रिप्शन, चाहे वो प्रीवियस ईयर में मिला हो, चाहे करंट ईयर में मिला हो, चाहे करंट ईयर का अभी मिलना बाकी है, क्या वो तीनों चीजें हैं। मिल चुका 80,000, मिलना है 7,000, लास्ट ईयर मिल चुका करंट ईयर का 8,000, ये सब ऐड करेंगे तो 95,000। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हाँ, बाकी इसके इफेक्ट्स बैलेंस शीट में जाएंगे, जो आप खुद स्टडी करना।
ये इनकम साइड कैसे रिकॉर्ड किया है, टाइम विल नॉट परमिट मी टू गो इन डिटेल. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स एक साथ दिए गए हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस. आपको मालूम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर साइड ऐड करो और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल वैसे ही जो आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सीखा. प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस करो और बैलेंस शीट के एसेट साइड. एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम होता है आउटस्टैंडिंग इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव. वो करंट ईयर की इनकम है तो करंट ईयर के इनकम में ऐड करो और बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाओ. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये इनकम में से माइनस करो और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाओ. ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस से मैंने सब सिखा दिया. डेप्रिसिएशन बिल्कुल सेम. डेप्रिसिएशन मशीनरी है तो मशीनरी से माइनस करो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो फर्नीचर माइनस करो और उसका दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड दिखाओ. एंट्रेंस फीस, कभी कभी क्या होगा बेटा, आपको एंट्रेंस फीस दिया होगा 10,000 और कहा होगा कि 5,000 कैपिटलाइज करो. मतलब ये बोलना चाहते हैं कि एंट्रेंस फी 10,000 है जिसमें से 5,000 जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है और 5,000 जो है कैपिटल रिसिप्ट है. जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो आप इनकम में दिखाओगे और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो आप कैपिटल फंड में ऐड करोगे लायबिलिटी साइड. तो एंट्रेंस फीस एक्चुअली एडजस्टमेंट में क्लेरिफाई करेंगे कि क्या पूरा एंट्रेंस फीस रेवेन्यू है, क्या आधा रेवेन्यू है, आधा कैपिटल है. और एडजस्टमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको एंट्रेंस फीस का इफेक्ट देना है. ध्यान में रखना है, अगर प्रॉब्लम में क्लियरली कहा गया है कि एंट्रेंस फीस में से 10,000 एंट्रेंस फीस है, उसमें से 6,000 जो है वो कैपिटलाइज करना है. कैपिटलाइज करना है मतलब उसको कैपिटल रिसिप्ट समझना है. कैपिटल रिसिप्ट समझना है मतलब लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना. अगर 10 में से 6 कैपिटल रिसिप्ट है तो ऑटोमेटिकली बाकी 4 जो है वो हमको इनकम साइड as recurring income as a revenue. Next slide please. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये मैंने आपको सिखा दिया. ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी प्लस आउटस्टैंडिंग बिल वो सेम है, कोई फर्क नहीं उसमें. अगर कोई स्पेशल फंड क्रिएट किया है या स्पेशल डोनेशन है, स्पेशल फंड, स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, टूर्नामेंट फंड, ये सब जाएगा. लीगेसीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये सब जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ऑल जनरल डोनेशंस जाएगा इनकम साइड एज अ रेगुलर रेवेन्यू रिसिप्ट. स्पेसिफिक डोनेशन जाएगा लायबिलिटी साइड. कोई भी आपका स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक डोनेशन वो कभी भी रेगुलर, स्पेसिफिक का मतलब ये बार बार नहीं होता है, वंस इन अ व्हाइल, वो स्पेशल है, नॉन रिकरिंग है. ध्यान देना है कि एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया जाए तो उसको आप उस हिसाब से ट्रीट करना है. द डिफरेंस होगा कि हमने एसेट परचेस किया है, डेप्रिसिएशन कितना है, उसको ड्यू वेटेज देना है. ठीक है. फिर लाइफ मेंबरशिप फीस है, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि लाइफ मेंबरशिप फीस अगर वो कैपिटलाइज करने को बोलते हैं तो लायबिलिटी साइड, अगर वो रेवेन्यू बोल रहे हैं तो मोस्टली जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो मोस्ट ऑफ द केस में कैपिटल रिसिप्ट होता है, नॉन रिकरिंग रिसिप्ट होता है, इसलिए उसको वहीं पे दिखाया जाता है. अगर हमने एसेट बेचा है तो उसकी बुक वैल्यू माइनस करनी है. सपोज एसेट का बुक वैल्यू 7,000 है. सपोज हमारे पास फर्नीचर टोटल 20,000 का है और उसमें से हमने 7,000 का फर्नीचर 7.5 में बेचा, 7,000 बुक वैल्यू. तो जो माइनस करोगे एसेट में से, क्योंकि बेचा है तो एसेट कम हो गया, तो फर्नीचर 20,000 माइनस उसका बुक वैल्यू 7,000. लेकिन अगर 7,500 में बेचा है तो 500 रुपए जो प्रॉफिट होगा हमको इनकम साइड दिखाना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. लेकिन अगर यही 7,000 वाला फर्नीचर में 6,000 में बेचा है तो 1,000 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमको एक्सपेंडिचर साइड दिखाना है. इस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज. बस दैट्स ऑल. मेरे ख्याल से मैक्सिमम हमने कवर किए हैं और अगर आप ये सब एडजस्टमेंट्स करके जाते हो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा.
I have only 15 minutes left. I'll leave that aside for bills of exchange. उसमें प्रोफोमा वगैरह और जो कुछ खास बात है वो मैं सिखा रहा हूँ. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Shall we switch over to bills of exchange? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Technical team. The next slide, proforma पहले हम जो यहाँ पे है वो proforma है bill of exchange. Yes. जैसे कि आपको मालूम है 5 मार्क का प्रोफोमा आता है बिल ऑफ एक्सचेंज का. बिल ऑफ एक्सचेंज वैसे तो डेफिनेशन लिखा जाए बिल ऑफ एक्सचेंज का तो एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 a bill of exchange is a negotiable instrument in writing containing unconditional order signed by the maker directing certain person to pay a certain sum of money only to or with order of the maker or thereof the instrument. शायद मैं फास्ट गया तो डिफिकल्ट लगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है. आपको ये बता दूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल पेपर with a stamp duty affixed on it, indicating a relationship between creditor and debtor. ये बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत तभी होती है जब आपने उधार पर किसी से गुड्स खरीदे हैं या किसी को गुड्स बेचे हैं, या फिर आपने किसी से लोन लिया है या आपने किसी को लोन दिया है. जब और जहां क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप होगा और फ्यूचर डेट पर आपको पैसा मिलना है या फ्यूचर डेट पर आपको पैसा देना है तो जरूरत पड़ती है इस डॉक्यूमेंट की जिसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. इंडियन लैंग्वेज में इसको हुंडी भी कहा जाता है. नॉट गोइंग इन डिटेल. एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 के गुड्स उधार पे बेचे. मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट. अब जैसे ए और बी के बीच में क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, ए ने उधार पे बेचा, बी ने उधार पे खरीदा, तो ए बन गया क्रेडिटर, बी बन गया डेटर. 2 महीने के बाद ए को पैसा मिलना है 10,000, बी को पैसा चुकाना है 10,000. क्रेडिटर ए, डेटर बी. अब क्या भरोसा, क्या यकीन कि बी पैसा देगा. तो मिस्टर ए जो क्रेडिटर है क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट बनाएगा, टाइटल देगा बिल ऑफ एक्सचेंज, अपना नाम एड्रेस लिखेगा, इस पे एक प्रॉपर वैल्यू का स्टैंप लगाएगा तो गिव इट अ लीगल इन मीनिंग. अमाउंट लिखेगा 10,000, 20,000, फिर लिखेगा 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. ये लिखेगा, मिस्टर ए कर रहा है, जो राइटर है, मेकर है, अपना साइन करेगा. बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड बी का नाम लिखेगा और उसको भेज देगा. ये ए ने बी को भेजा है, बी जो डेटर है इसके ऊपर लिखेगा एक्सेप्टेड, साइन करेगा, डेट लिखेगा. अब जैसे ही उसने एक्सेप्टेड लिखा, बी बन गया ड्रॉवी, ए बन गया ड्रॉवर. अब इनका नाम चेंज हो गया, क्रेडिटर बिकम्स ड्रॉवर, डेटर बिकम्स ड्रॉवर. ड्रॉवर वन हु मेक्स और राइट्स द बिल, ड्रॉवी the person on whom the bill is drawn and the person who is liable to make the payment of bill of exchange. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि मिस्टर ए ड्रॉवर ने ये बिल अपने नाम, खुद के नाम पे डाला है, इसलिए कहता है पे टू मी और माय ऑर्डर. Here drawer has made the bill payable to himself. पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि ए जो ड्रॉवर है वो लिखेगा कि भाई मेरी तरफ से पेमेंट सी को कर दो, तो लिखेगा पे टू सी मिस्टर सी और हिज ऑर्डर, पे टू मिस्टर जेड और हिज ऑर्डर. उस हालात में उस थर्ड पार्टी मिस्टर सी या मिस्टर जेड को पेई कहेंगे. तो 3 पार्टी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई. ड्रॉवर इज वन हु ड्रॉज द बिल, makes the bill, writes the bill, he is a creditor. Drawee is the person on whom bill is drawn, he is the debtor, he is the person liable to make the payment of it. Right? तो ये आपको प्रोफॉर्मा नजर आएगा जिसमें ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइटल है, राइट हैंड साइड ड्रॉवर का नाम एड्रेस है, उसके नीचे डेट ऑफ बिल है, लेफ्ट हैंड साइड स्टैंप है, फिर अमाउंट इन फिगर्स है, फिर एक सेंटेंस है, dash months after the date paid to me or order a sum of rupees dash for the value received. Signature that is signed by a drawer. 2, Mr. Drawee is address,
एंड देन ये जो आप नीचे बॉटम में देख रहे हैं ये ड्रॉवर ने लिखा है, ये ड्रॉवी ने, इसको छोड़कर एक्सेप्टेड साइन जो बॉटम में है इसको छोड़कर बाकी सब किसने लिखा है? ड्रॉवर ने। ये सिर्फ ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया, यानी वो एग्री करा है कि हाँ 2 महीने के बाद मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अब ये साइन करने के बाद बिल वापस ड्रॉवर को भेजा, तो ड्रॉवर को ये रहेगा कि हाँ ये बिल मेरे पास रहेगा, ये ड्रॉवर को प्रूफ है कि बी ने एग्री किया है, मिस्टर ए क्रेडिट को प्रूफ है कि बी ने एग्री किया है कि हाँ वो 2 महीने के बाद 10,000 रुपए देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड, इस प्रॉब्लम में ड्रॉवर भी ए है और पेई भी खुद ए है। यस, मेक द बिल पेएबल टू हिमसेल्फ। तो इफ आई आस्क यू कैन ड्रॉवर एंड पेई बी सेम पार्टी, आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, बट नॉट ऑलवेज। If drawer makes the bill payable to himself, then drawer and payee can be the same party. Next slide please. अलग अलग तरह की बिल ऑफ एक्सचेंज है, ध्यान। अभी इसमें चेंज इतना ही है कि यहाँ जो है पेई है दूसरा कोई और कोई, और इन दोनों में जो एक्सेप्टेंस है इसको कहते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस क्या होता है कि ड्रॉवी ने एक्सेप्टेड वर्ड लिखा, साइन किया, अपना नाम लिखा ब्रैकेट में, डेट लिखा, ये जनरली फॉलोड मेथड एक्सेप्टेंस का, इसलिए जनरल एक्सेप्टेंस। लेकिन तो अभी आप फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज और सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस दिख रहे हैं? पहले परफॉर्मर में लिखा था पे टू मी ऑर्डर और माय ऑर्डर, यहाँ लिखा है पे टू श्रवण दवे पनवेल और हिज ऑर्डर। अभी श्रवण दवे खुद नहीं है ड्रॉवर, ड्रॉवर है मुकुंद देसाई, ड्रॉवी है योगेंद्र तिलक और पेई है श्रवण दवे। यानी यहां ड्रॉवर मुकुंद देसाई ड्रॉवी योगेंद्र तिलक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि 90 डेज के बाद तुम ये पैसा श्रवण दवे जो पनवेल के रहने वाला है उसे या उसके ऑर्डर को 30,000 रुपीज दे दो। 90 डेज आफ्टर द डे पे टू श्रवण दवे पनवेल और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। वापस से देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज टाइटल, राइट हैंड साइड नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर, स्टैम्प, अमाउंट इन फिगर्स, द पैराग्राफ ऑफ द स्टेटमेंट, राइट हैंड साइड सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, लेफ्ट हैंड साइड नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवी, इन द सेंटर अगेन एक्सेप्टेड, signed into bracket name of the drawee and then date if given, that is called as date of acceptance. तो दोनों में फर्क ये है, पहले वाले में ड्रॉवर और पेई एक ही पार्टी थी, दूसरे में ड्रॉवर अलग है पेई अलग है, मतलब ड्रॉवर हैज मेड द बिल पेएबल इन फेवर ऑफ मिस्टर शरॉन दवे ऑफ पनवेल। ये जनरल एक्सेप्टेंस था। अभी देखिए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आएगा। अभी एक्सेप्टेंस में चेंज, बाकी सब सेम रहेगा, एक्सेप्टेंस में चेंज रहेगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आप सिर्फ एकदम बॉटम में सेंटर में देखिए, लिखा है एक्सेप्टेड फॉर ₹15,000 ओनली। दिस इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। जब ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करते वक्त, जब ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करते वक्त बिल का अमाउंट कम लिखे, आप पैराग्राफ में अमाउंट देखो कितना लिखा है, मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। 45 days after the date paid to me or my order a sum of rupees 18,750, 18,750। यानी ड्रॉवर अमोल साने कह रहा है ड्रॉवी सागरिका को कि भाई तुम 45 दिन के बाद मुझे 18,750, लेकिन सागरिका माँ ने एक्सेप्ट करते वक्त लिखती है मैं दूंगी लेकिन 15,000। अब आप बोलेंगे सर ये 18,750 पर 15,000 क्यों दे रही है? ये उनके डिस्प्यूट क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उतना अमाउंट नहीं देना चाहती है ड्रॉइंग जो बिल में लिखा है, वो कम देना चाहिए। तो अगर उसने अमाउंट की कोई कंडीशन लिखी उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। दिस इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो देखिए ड्रॉवी ने क्या किया, 18,750 न देना उसको 15, तो लिखा एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली। मैं 18,750 नहीं दूंगी, मैं 15,000 दूंगी। वो डिस्प्यूट है 3,750 का, ये उनके बीच का मामला है, हमें कोई वास्ता नहीं। ठीक है, Yes, sir. ये था क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। नेक्स्ट है क्वालिफाइड एज टू टाइम। ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर से नीचे देखिए, एक्सेप्टेड फॉर 2 months। ये 2 लाइंस के बीच में लिखा है ना, ये ड्रॉवी ने लिखा है, यहाँ ड्रॉवी का नाम है नम्रता कोकिल। तो नम्रता कोकिल, अब बिल का स्टेटमेंट पढ़िए। 1 month आफ्टर डेट, ड्रॉवर कह रहा है, ड्रॉवर का नाम है नीरजा पब्लिशिंग हाउस। नीरजा पब्लिशिंग हाउस नम्रता कोकिल को कह रहा है कि 1 महीने के बाद आप ये अमाउंट देना जो लिखा है इसमें। पर नम्रता कह रही है कि नहीं, मैं 1 महीने के बाद नहीं, मैं 2 महीने के बाद। यानी ड्रॉवी को ये पीरियड मंजूर नहीं है, वक्त मंजूर नहीं, टाइम मंजूर नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड एज टू पीरियड और क्वालिफाइड एज टू टाइम। तो जब ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करते वक्त पीरियड का या टाइम का कोई कंडीशन डाले, 1 महीने के बजाय 2 महीना लिखे, 2 महीने के बजाय 3 महीना लिखे, ड्रॉवर ने लिखा है कि 1 महीने के बाद पैसा दो, लेकिन नम्रता कोकिल बोल रहे नहीं बाबा, मैं 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो इसको कहते हैं क्वालिफाइड एज टू टाइम और पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो बिल है ना बेटा, ध्यान देना, इस बिल को कहते हैं आफ्टर साइट बिल। 99% एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, 99% नहीं, शायद 100% ही नहीं आएगा। पर आपका अंडरस्टैंडिंग है, ये जो हाई लेवल के स्टूडेंट है, इंटेलिजेंस स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है समझना कि आफ्टर साइट और आफ्टर डेट, अभी तक जितने भी स्पेसिमेन थे ना वो आफ्टर डेट के, क्योंकि लिखा था 2 months आफ्टर डेट, 45 days आफ्टर डेट, 90 days आफ्टर डेट। यहां लिखा होगा आफ्टर साइट, सब सेम है, सिर्फ लिखा है, देखो पैराग्राफ और स्टेटमेंट पे ध्यान दो, 2 months आफ्टर साइट, बाकी सब वर्ड सेम है, एवरीथिंग सेम। आफ्टर डेट की जगह आफ्टर साइट। बोले सर क्या फर्क है? फर्क कितना है कि आफ्टर डेट बिल में ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल। आफ्टर डेट में ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल, लेकिन आफ्टर साइट में ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए जैसे इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन में, इस प्रोफार्मा में बिल का डेट है 23 जनवरी 2020, लेकिन ड्यू डेट 23 जनवरी से नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 27 जनवरी व्हिच इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो द डिफरेंस बिटवीन after date bill and after site bill is, in after date bill due date is calculated from the date of the bill, but in after site the due date is calculated from the date of acceptance. One more pro forma please, next slide। डिमांड बिल आएगा, डिमांड बिल ये पॉपुलर नहीं, ये कॉमन नहीं, एग्जामिनेशन में 99% नहीं आएगा। अब ये डिमांड बिल क्या होता है, यहाँ पीरियड नहीं लिखा था, जैसे लिखा था ना 2 months आफ्टर डेट, 2 months आफ्टर साइट, 45 days आफ्टर डेट, 90 days आफ्टर डेट, जैसे ये सब लिखा था ना। यहाँ पीरियड, यहाँ नहीं लिखा रहता है, यहाँ पीरियड नहीं लिखा रहता, यहाँ पूरा सब सेम रहेगा, सिर्फ लिखा ऑन डिमांड पेड टू मी और ऑन डिमांड पेड टू अजय, ऑन डिमांड पेड टू विजय ऑफ पनवे और इज ऑर्डर, लेकिन ये वर्ड नहीं लिखा होगा। देखो पढ़ो, ऑन डिमांड लिखा, ऑन डिमांड, यानी यहाँ पीरियड होता ही नहीं है। ड्रॉवर ने जिस दिन उसके सामने रख दिया ड्रॉवी को तुरंत पैसा दे, राइट। आफ्टर डेट में पैसा कब देगा ड्रॉवी? डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। आफ्टर साइट में कभी देगा? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस पीरियड प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। लेकिन ऑन डिमांड में पैसा कब देगा? जब ड्रॉवर ने पैसा मांगा, ड्रॉवर ने सामने रखा, होल्डर ने, ड्रॉवी को तुरंत पैसा देना, लिखा है ऑन डिमांड पेड टू और माय ऑर्डर, पेड टू संजय और इज ऑर्डर। ऑन डिमांड वर्ड रहता है, इसको डिमांड बिल बोलते हैं। नॉट पॉपुलर इन ट्रेड एंड बिजनेस, नॉट पॉपुलर। कौन चाहेगा कि मेरे ऊपर डिमांड बिल? ड्रॉवी तो कम से कम नहीं चाहेगा। मेरे ख्याल से हम एग्जैक्टली 6 शार्प एकदम 6 हुए हैं, 6 o'clock, और यही मेरा टाइम था। तो आई थिंक आई हैव कंक्लूडेड। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज डाउट्स है बिल ऑफ एक्सचेंज में तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल कंसीडर दिस एज क्लोज्ड। आई होप आई जस्टिफाइड, आई ट्राइड टू डू माय बेस्ट। Any queries you can ask about bills of exchange?
so that in 10 minutes we can wind up. I have one more lecture at 6:15. Sir, please explain how to write board paper in brief. ओके देखो बेटा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब आप पेपर लिख रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उस पर ध्यान देना. नंबर वन, बिकॉज यू हैव 3.5 hours दिस ईयर एज अ स्पेशल केस एंड 80 मार्क्स का पेपर, तो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर एज राइटिंग ऑफ फिगर्स इज कंसर्न, जब आप 5,000, 10,000, 2,700 लिख तो रफ नहीं होना चाहिए, बहुत क्लैरिटी होना चाहिए. एंड फिगर्स वन बिलो द अदर, वेरी नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन. बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है, सिली मिस्टेक्स करते हैं. कैसे सिली मिस्टेक्स करते हैं, ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्हें 100 मार्क्स देना. अगर आपको 100 और 99 में डिफरेंस नहीं पड़ता है तो यू कैन इग्नोर माय एक्सप्लेनेशन. जैसे बहुत बार हम अकाउंट बनाते हैं, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना, लेफ्ट हैंड साइड डीआर लिखना है, राइट हैंड सीआर लिखना है, प्रॉफिट लॉस डीआर सीआर क्लियर लिखना है, इन द बुक्स ऑफ डैश ये लिखना. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 99, क्योंकि चीफ मॉडरेटर का हमेशा इंस्ट्रक्शन होता है मॉडरेटर्स और एग्जामिनर्स को, अगर किसी बच्चे ने एक्यूरेटली सब कुछ लिखा है, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं है, नीट एंड क्लीन है, डेबिट क्रेडिट हर जगह दिखा है, कॉलम्स बहुत नीट क्लीन ड्रॉ किए गए, तो उसको 100 देने से किसी को रोकना नहीं, प्रोवाइडेड आपके आंसर सॉल्यूशन करेक्ट. ये प्लीज ध्यान दो, पेपर आपका 3 बार चेक होता है. पहली बार एग्जामिनर चेक करता है, दूसरी बार मॉडरेटर चेक करता है, तीसरी बार चीफ मॉडरेटर के पास वो केसेस जाते हैं जो आउट ऑफ होते हैं, मतलब 100 में से 100 जिसने दी. अगर वो चेक करेगा 100 में, सपोज मैंने ऐसे पेपर चेक का, उसके पास ऐसे मेरे पास 500 पेपर आए थे, उसमें से 50 स्टूडेंट्स को 100 आउट, वो चीफ मॉडरेटर 100 में से 500 पेपर 50 पेपर देख रहा है, वो देखेगा कि डेबिट क्रेडिट सबने लिखा है कि नहीं, क्लैरिटी है कि नहीं, वो आपका एक बार कट कर सकता है सिली पॉइंट्स. तो बहुत ध्यान देना है, खास करके वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, बहुत ज्यादा स्कॉलर्स हैं और जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट एंड वेरी नीट एंड क्लीन. सो फॉर प्रेजेंटेशन इज कंसर्न, कोशिश करके ओवर राइटिंग फॉर इंस्टेंस के चलो जल्दबाजी में बेटा सपोज आपका रह जाता है कुछ, ओवर राइटिंग हो जाती है, तो प्लीज ध्यान दो, सपोज गलती हो गई हमको फिगर लिखने में, तो एक काम करना, सिर्फ एक कट करना उसको और उसके ऊपर फिगर लिखना, फिगर के ऊपर ओवर राइट नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल आपको 8,800 लिखना था और आपने 8,000 लिखा, तो स्टूडेंट क्या करता, जीरो को 2 बार ऐसे 3 बार घुमा के 888 कर देता. तो वहीं पे स्क्रिबलिंग नहीं करना, एक लाइन ड्रॉ करो और उसके ऊपर नीट एंड क्लीन एक करेक्ट फिगर. I think that is the only way, that is the correct way of making alterations or corrections. Rest of all, your teachers are there, faculty is there, they have already guided you क्या करना है क्या नहीं. तो क्योंकि अभी मेरा 6:15 बजे लेक्चर है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे 5-10 मिनट उनके लिए भी कुछ प्रिपरेशंस करना है, कुछ स्लाइड्स वगैरह उनको देना है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज अकोमोडेट एंड एडजस्ट दिस टाइम. उसके इनफैक्ट कुछ डिफिकल्टीज है तो आप मुझे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके टीचर्स से कि मेरा नंबर शेयर करें, व्हाट्सएप नंबर, नो वॉइस कॉल, और व्हाट्सएप पे करेंगे तो मैं इवन एक स्ट्रेंजर के रिप्लाई भी देता हूँ, स्ट्रेंजर स्टूडेंट का. आई डोंट माइंड आंसरिंग दैट. Thank you, sir. Thank you very much. Good evening, everyone. I am Mr. Bhavesh Kanted here to present the vote of thanks for today's guidance lecture. I would like to thank our guest lecturer, speaker, Mr. Satram Verani, sir, for enlightening us with your knowledge. Today's lecture was full of knowledge and interesting things. The way sir covered bills of exchange, NPO, and other topics. It gave deep insight into the topic of accountancy. The point where sir told us about how to write board papers and how to see, how to make changes, how to do the corrections in the board paper, that is helpful to the students. I am pretty sure the precious knowledge that sir gave us will definitely help the students.
Once again, I would like to thank Sir for taking out time from his busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much. I would also like to thank our principal, Dr. C.A. Kishore Pishori sir, and our junior college vice principal, Mrs. Roma Wagh, who organized this lecture, and invite Professor Sataram sir to conduct it. I want to thank Team BIAP and really work hard to make this event successful. Also to my colleagues, Dr. Naresh Matai, Rajesh Gupta sir, and Abhishek Panchal for coordinating and making this event happen. And also a big thank to all our students present here for paying our attention and learning. I would end my speech. Thank you very much. Thanks, one and all. Thank you for inviting me. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank Was you, a bit sir. fast, Thank but you. I had to manage 3 topics. In fact, in Bills of Fiction, I can manage only the pro forma. Given an opportunity, I'll be solving the difficulties of students when they contact me on my WhatsApp. It'll be my pleasure. It's always a proud feeling to serve HSNC board, to be a part of it. Thank you once again to one and all. Have a nice day. Thanks to the wonderful audience. Thanks to the very intelligent and scholar students who have been part of this program. Thanks a lot. See you again. Good day. Thank you, sir. Thank Thanks. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I take your consent to leave. Thank you. Yes, Sure, sir. sure, sure. Yeah, sir. Yeah, bye.